Hello children, welcome to science class. Today's class we will discuss about respiration in human beings. So let us have a look on different parts of human respiratory system. Human respiratory system consists of different organs which starts with nasal passage or nasal cavity, pharynx which is a common path for air and food, larynx, then trachea which is also known as windpipe. Then this windpipe further divides into two branches. Each branch goes to each lungs. These branches are known as bronchi. This is plural and singular is bronchus. So each bronchus goes to each lungs. Further these bronchi divides into different branches and they are called bronchioles, and these bronchioles ends up with balloon like structures which are known as alveoli. So the gaseous exchange take place in these balloon like structures. So these are different parts of human respiratory system. These both the lungs are present in a cavity which is known as chest cavity or also known as thoracic cavity, and lungs are very delicate organs. So they are protected by a rib cage, protected by a cage which is known as rib cage. So ribs protect the lungs. So there is a muscular part in the bottom of the rib cage or chest cavity that is known as diaphragm. So the movement of diaphragm also very important in the process of inhalation and exhalation or breathing. So how breathing or exchange of gases take place in the lungs or in human, we will discuss in detail now. In human beings, air is taken into the body through the nostrils. Air is taken through the nostril. There are so many hairs present into nostril which filter the air entering through the nostril. There are so many dust particles and other unwanted materials that are stuck into these hairs, and the filtered air enters in our lungs through the throat. Mucus is also present in the nasal cavity which also help in the smooth entering of air into the lungs. From here the air passes through the throat and into the lungs. Nasal cavity se air passes through this throat and then it goes to lungs. Now you can see this part in the throat. There are rings of cartilage present on the throat or trachea. What is the role of these rings of cartilage? These rings of cartilage protect this throat or windpipe from collapsing when there is a high pressure air. When air enters into this pipe with pressure, so this pipe may break. ये फट सकती है जब ज़्यादा प्रेशर से एयर आएगी, और अगर प्रेशर बहुत कम हो गया पाइप में तो उस समय क्या होगा, दिस में श्रिंक और ये पाइप पिचक सकती है. तो इन दोनों तरह से ज़्यादा प्रेशर और कम प्रेशर दोनों से इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. सो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर थ्रोट विच प्रोटेक्ट द एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन एयर प्रेशर इज हाई और लो इन बोथ द केसेस. ओके, सो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिंग ऑफ cartilage. The rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passage does not collapse due to high or low air pressure. Trachea further divides into two branches. Each branch goes to each lung. So within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, and further each bronchus divides into smaller and smaller tubes. These tubes are called bronchioles, and again bronchioles divides into balloon like structures which are called alveoli. और alveoli क्या होती हैं, they provide a larger surface area. ज़्यादा surface area provide करती हैं for the exchange of gases. जितना ज़्यादा surface area होगा उतना ही efficient exchange of gases होगा. So the alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels. ये जो बैलून्स है इनमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है. उन ब्लड वेसल्स के थ्रू
ऑक्सीजन है वो क्या होती है, ऑक्सीजन इज सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, एंड जो ब्लड आता है बॉडी से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें अब्जॉर्ब होती है एंड दैट गोज आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी थ्रू लंग्स. नाउ हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. वी नो देर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस. वन ब्रीदिंग. ब्रीदिंग it includes inhalation and second exhalation. Now what happens during inhalation? Inhalation के टाइम में क्या होता है, when air enters into body then ribs move upward and outwards. Moves रिब्स, हमारी रिब्स क्या होती हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं और बाहर की तरफ मूव करती हैं. एंड दिस मस्कुलर डायफ्राम, ये जो डायफ्राम है दैट फ्लैटन्स मीन्स इट मूव्स डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स मूव होने से क्या होगा, द चेस्ट कैविटी, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, वॉल्यूम इंक्रीजेस. वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज. वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एयर की जो प्रेशर है दैट विल प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. एयर प्रेशर डिक्रीज होने से एयर विल एंटर थ्रू नोस्ट्रिल इनटू लंग्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन. एक कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ पे सबसे बड़ा रहता है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन वी टेक ऑक्सीजन. ड्यूरिंग इनहेलेशन वी टेक ऑक्सीजन. दिस इज वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन डेवलप. इन इनहेलेशन वी टेक एयर. इनहेलेशन वी टेक एयर. हमारी नोस्ट्रिल में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ कि वो ऑक्सीजन को फिल्टर करके या ऑक्सीजन को एयर से सेपरेट करके अंदर जाने देगा. सो थ्रू नोस्ट्रिल वी टेक एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट. देयर इज नो फिल्टर विच कैन फिल्टर द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. सो ऑक्सीजन, एयर गोज इन टू अवर लंग्स. फ्रॉम देयर ऑक्सीजन इज सेपरेटेड इन द alveoles. So we inhale air, not oxygen. Now what happens, this air goes to alveoli. In alveoli the oxygen is mixed with blood and that blood is supplied to different parts of the body. The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं एल्वियोली में आती है. एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय blood in the alveolar blood vessel to be transported to all the cells in the body. और यहाँ से जो ऑक्सीजन मिक्स हुआ ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एल्वियोली में आता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या वहाँ से उस ब्लड से सेपरेट करके लंग्स के थ्रू वो बाहर निकाल दी जाती है. ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. अब एक क्वेश्चन आता है कि इनहेलेशन, ब्रीदिंग इज, एक क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रीदिंग इज ए rhythmic process while exchange of gases is a continuous process. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. जब हम इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सहेल कर रहे होते हैं उस समय इनहेलेशन के टाइम में क्या होता है, हम एयर को अंदर लेते हैं. एक्सहेलेशन के टाइम में भी वी गिव आउट एयर बट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन टू लंग्स. जब हम एक्सहेल करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि लंग्स के अंदर की सारी एयर हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है. उस समय भी क्या होता है, कुछ अमाउंट जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन टू लंग्स. लंग्स मीन्स इन एल्वियोली. सो एल्वियोली में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो हमेशा चलता रहता है कंटिन्यूसली. बट जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मीन्स ब्रीदिंग, दैट इज रिदमिक प्रोसेस. एक बार हम एक्सहेल करेंगे, दूसरी बार इनहेल करेंगे. सो दिस इज व्हाई इट इज सेड ब्रीदिंग साइकिल इज रिदमिक while exchange of gases is a continuous process. Okay, now if the size of organism is large, अब ये जो प्रोसेस है क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? Why exchange of gases cannot take place through diffusion in human beings? Because if the size of organism is large, diffusion can not deliver oxygen to all parts of the body. पूरी body parts से diffusion के through oxygen
सप्लाई नहीं हो सकती, और इसके लिए हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है, ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है, और थ्रू दिस पिगमेंट ऑक्सीजन क्या होती है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है और ऑल ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचती है। अगर डिफ्यूजन एलोन कैन नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स इन ह्यूमन बींग्स। क्यों नहीं कर सकती? अगर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन पहुंचना होता तो क्या होगा, लंग्स से हमारे टॉय तक ऑक्सीजन को पहुंचने में 3 इयर्स का टाइम लग जाता अगर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन पहुंचनी हो तो। सो ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद ए पिगमेंट। एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये क्या होता है, इट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन एंड दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ईच एंड एवरी पार्ट तक बॉडी के पहुंचाने का काम करता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड को किसी पिगमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में सेल्स, मान लो हमारी फिंगर की सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है प्रोड्यूस वी रेस्पिरेशन में, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन द ब्लड एंड थ्रू ब्लड दैट इज टेकन टू लंग्स। और लंग्स में क्या होता है, एल्वियोली में उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू एयर में मिक्स करके बॉडी से बाहर एक्सेलेशन के टाइम में वो बाहर निकल जाती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किसी भी पिगमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन dissolved form in our blood. So in this way transport of oxygen and carbon dioxide take place in our body. That's all for today's class. Thank you.